हेलो एंड वेलकम टू द लेगेसी आईएएस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टुडे बेसिकली द न्यूज दैट इज कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश बेसिकली रिगार्डिंग बांग्लादेश रिवोक्स Sheikh Hasina's passport. Sheikh Hasina, she was the Prime Minister of Bangladesh. So basically in the month of July or August, 2024, there was a protest in Bangladesh specifically by the student, and after that she was ousted from the government after 16 years of rules. She was ruling. So now she is in India. She basically is staying in India. Now the Bangladesh basically authority has revoked her passport. So cancellation of the passport is expected to create basically a problem for India, where Hasina is presently stationed since leaving Dhaka on 5th August. तो जो शेख हसीना है, the ex Prime Minister of Bangladesh, she is in India from 5th August. तो हम एक चीज आप जानेंगे क्या रीजन है, और दूसरा और एक हम चीज इसमें जानेंगे कि बांग्लादेश अथॉरिटी बेसिकली इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल, जो वहां का एक कोर्ट बनाया गया था 2009 में टू ट्रायल द वार क्रिमिनल्स, उसने भी एक सेकंड अरेस्ट वारंट इशू किया है अगेंस्ट हसीना. सो वी विल डिस्कस दैट आल्सो. बिफोर दैट, इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल, please subscribe the channel and hit the bell icon to get the notification, and please share with your friends also, and don't forget to comment, and your one like is definitely enough to motivate my team to create such more insightful videos. So now coming back here is revocation of Sheikh Hasina's passport. So Bangladesh revoked passport of Sheikh Hasina basically on 7th January and 96 others individuals, but authority has not declared the name of those 96 others individuals. Authority has given the name of only Sheikh Hasina, but we do not know who are those 96 others. The reason was this alleged involvement in the crackdown during July-August 2024 uprising. Actually this July to August 2024 uprising था, ये क्या था मैं आपको बता देता हूँ. This uprising basically associated with the students basically students आप समझ सकते हो उनका जो एक चल रहा था स्टूडेंट का प्रोटेस्ट, वो ये था एक जॉब कोटा रिफॉर्म दैट वाज डन बाय शेख हसीना गवर्नमेंट ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो वहां पे पीएम थी. और जॉब कोटा रिफॉर्म में ये था कि जो गवर्नमेंट जो पब्लिक अपॉर्चुनिटी जो गवर्नमेंट जॉब्स होता है, उन गवर्नमेंट जॉब में 56% गवर्नमेंट जॉब्स दे वर रिजर्व. कितना रिजर्व कर दिया? 56% सीट्स दे वर रिजर्व्ड. अब 56% सीट रिजर्व्स, ये इतना प्रॉब्लम नहीं था. मेन प्रॉब्लम वाज दिस, उसमें भी 30% सीट जो है ना, दे आर रिजर्व्ड फॉर द डिसेंडेंट्स ऑफ दोज फ्रीडम फाइटर्स. मतलब 1971 के टाइम में दोज हु वर इन्वॉल्व, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके बच्चों के लिए 30% सीट्स वर रिजर्व्ड. आप सोचो अगर इंडिया में भी यही चीज कर दीजिए कि इंडिया में फॉर एग्जांपल अभी जो रिजर्वेशन है आपका SC, ST, OBC और EWS, अगर ये बोल दिया जाए कि आउट ऑफ दीज 30% सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर दोज चिल्ड्रंस जिनके फादर और फोर फादर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे वर द फ्रीडम फाइटर्स, तो डेफिनेटली इट विल बी कंसिडर्ड डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर ओनली. तो इसी के अगेंस्ट स्टूडेंट ने बेसिकली रिफॉर्म एक प्रोटेस्ट किया था, एंड इन ड्यूरिंग दैट प्रोटेस्ट गवर्नमेंट हैवली क्रैक डाउन ओवर इट, एंड इसके साथ हाई इन्फ्लेशन, हाई यूथ बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर लाइक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट, ये सारा जो एक कॉकटेल तैयार हुआ था, इसी कॉकटेल के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुआ, एंड देन दिस आवामी लीग government that was led by Sheikh Hasina that was crumbled before this protest, and then definitely the interim government was formed, and the Sheikh Hasina basically came to India in 5th August, and the interim government that was set up over there under Muhammad Yunus, basically he is a Nobel laureate also. So from the Bangladesh, so that is the entire story that I told you. So main reason यही था, reason was alleged involvement in the crackdown during July-August 2024 uprising, accusation of enforced disappearance. ये भी उन पे एक accuse लगाया जाता है enforced disappearance and killing during protest.
कि बहुत सारे जो लोग थे जो जेल में बंद थे उनको डिसअपियर कर दिया गया। इस आरोप पे बेसिकली ये लगा है और उनका पासपोर्ट जो है ना दैट वाज रिवोक्ड। आगे अगर हम बढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल इम्पैक्ट क्या हुआ शेख हसीना पे? इम्पैक्ट वाज दिस। Now, Sheikh Hasina is currently in India since leaving Dhaka on 5th August 2024. सारी दुनिया जानती है। कैंसिलेशन may create diplomatic and logistical hardship for India, क्योंकि आप कैसे इंडिया के लिए ये प्रॉब्लम है कि जिस बंदे का पासपोर्ट ही रिवोक हो गया है आप उस बंदे को वहां क्यों रखे हुए हो? दिस इज ए प्रॉब्लम फॉर इंडिया। ब्रॉडर इंप्लीकेशन क्या हो? रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा ऑन ट्रैवल फॉर शेख हसीना एंड फैमिली मेंबर्स। अब वो कहीं और ट्रैवल करेंगे तो पासपोर्ट की जरूरत है, पासपोर्ट आपके पास है नहीं, तो दैट इज वन प्रॉब्लम। टारगेटिंग प्रोमिनेंट फैमिली मेंबर्स कौन कौन से? उनकी सिस्टर रेहाना, सन साजिद वाजिद जॉय एंड डॉटर साइमा वजीद पुतुल, इनके फैमिली मेंबर्स को भी टारगेट किया गया है। तो एक चीज हमने देखा है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट जो वहां पे आया है, फॉर एग्जांपल इन बांग्लादेश दैट इज ओके लेड बाय मोहम्मद यूनिस, ये कंप्लीटली दे आर टारगेटिंग द शेख हसीना, दे आर नॉट बेसिकली रीबिल्डिंग द बांग्लादेश। इनसे ये वो चीज नहीं हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू क्रिएट जॉब, दे आर नॉट एबल टू रीबिल्ड द बांग्लादेश, they are not able to control the inflations, they are not able to provide the food also, food का problem है, they are actually just requesting the India to send the rice, they are not able to purchase the rice even। आप समझ सकते हो इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही है वहां पे, बट उनका इंटायर फोकस बार बार कहां हो रहा है? ओनली शेख हसीना पे। और इन शेख हसीना को टारगेट करने के चक्कर में दे आर एलिनेटिंग इंडिया। इंडिया सपोज बिग कंट्री, ओके, आपके बाजू में बिग कंट्री है, आप उससे झगड़ा कर रहे हो सिर्फ शेख हसीना के चक्कर में, दैट इज ऑल्सो बिग प्रॉब्लम फॉर द मोहम्मद यूनुस। इट मे बी पॉसिबल कि उनको भी मुंह की खानी पड़ सकती है। मोहम्मद यूनुस ऑल्सो कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐसे इशारे किए हैं कि भैया अब ये जो बाइडेन का गवर्नमेंट नहीं है, आपने बहुत नाटक कर लिया है, अब आप हटा भी दे सकते हो। आप समझ सकते हो ये चीज। हम इस नेक्स्ट अगर आप देखो इसमें, और जो उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी बेसिकली है, उन्होंने भी क्या बोल दिया है? बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है ना, उसने ऑर्डर किया बैंक को टू इन्वेस्टिगेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ शेख हसीना एंड फैमिली। उनको बोला जितने भी बैंक ट्रांजैक्शन थे वो भी हमको बताओ। उसके बाद आओ नेक्स्ट जो इशू था, सेकंड अरेस्ट वारंट दैट वाज इशूड। आप समझ सकते हो बांग्लादेश इशूड द सेकंड अरेस्ट वारंट अगेंस्ट शेख हसीना ऑन चार्ज ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस ड्यूरिंग हर रूल बाय इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल। मैं आपको बता दूं दिस इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल इट वाज सेट अप बाय शेख हसीना ओनली इन 2009 to trial the war criminals, those who were involved in killing of Bangladeshi during 1971, and उसी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने ये अरेस्ट वारंट इशू किया है अगेंस्ट शेख हसीना। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट अरेस्ट वारंट। फर्स्ट वारंट जो अरेस्ट वारंट था इट वाज इशूड इन October 2024 only, but now this is the second arrest warrant and it was said that कि शेख हसीना and others they need to appear by February 12th 2025। की एलिगेशन सेम है अगेन कि 700 प्लस डिसअपीयरेंस ओवर 15 to 16 इयर्स हुए हैं, मतलब उनको जेल में डाला गया था, जेल से वो गायब हो गए। 900 प्लस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स रिपोर्टेड अंडर हसीना's लीडरशिप एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस अरेस्ट वारंट हैज बीन इशूड। अब इसका इंपैक्ट इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप में क्या होगा? सी शेख हसीना जो इंडिया से रोल क्या है? शेख हसीना करेंटली इन इंडिया सिंस 5th August वी नो दैट इंडिया हैज नॉट ऑफिशियली कमेंटेड ऑन हसीना's स्टेटस। स्टिल इंडिया हैज नॉट कमेंटेड कि वेदर हसीना हैज टेकन द असाइलम और नॉट, वेदर हसीना हैज आस्क्ड फॉर द रिफ्यूज और नॉट। ये अभी इंडिया हैज नॉट रिलीज्ड एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करंट कंडीशन ऑफ द हसीना। Now diplomatic restraint क्या होगा? वीजा restrictions imposed by India since 5th August creating tensions. Trade and commerce between the two countries have declined over by 30% now। आप समझ सकते हो। Transportation links like train, buses halted, affecting people to people tie also because of this। Now अब अगर देखें कि इंडिया ने क्या दिया है बांग्लादेश को, अगर हम देखें ऐसा नहीं है कि इंडिया हैज नॉट गिवन एनीथिंग, इंडिया हैज हेल्प्ड बांग्लादेश। ओके, सो इंडिया हैज गिवन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आल्सो। आप देख सकते हो साइक्लोन एंड फ्लड रिलीफ, जब साइक्लोन आया था 2020 में, उस समय मेडिसिनल हेल्प, फूड रिलीफ, एवरीथिंग वाज गिवन बाय द इंडिया ओनली। सेकंड ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, अंडर वैक्सीन में 3 millions of doses have been given to the Bangladesh। They forgot all these things। रोहिंग्या refugee assistance
financial and material for management refugee crisis, that also India has given. Then आप सोच सकते हो यहाँ पे, for example, economic, okay, this and developmental cooperation, $8 billion credit line, that means largest Indian aid for project like road, railway and bridge, that was provided by India to Bangladesh. Infrastructure projects like Maitri Setu, that is Friendship Bridge, Padma Bridge rail link project, energy cooperation like 1160 megawatt electricity exported to Bangladesh, Rampal Maitri power plant 1320 megawatt, that much has done by the India. And we are not talking about rice also, we are providing rice to Bangladesh. Even abhi recently also Mohammad Yunus has requested India कि भैया हमको राइस दे दो, हमारे पास खाने को नहीं है. आप देख रहे हो ना कि आपके पास वो सब प्रॉब्लम है, लेकिन आप वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे हो. आपका पूरा जो दारो मदार बार बार आ रहा है, शेख हसीना को ये करेंगे वो करेंगे, अरे वो बाद में कर लेना. फर्स्ट वी हैव टू रीबिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, फर्स्ट वी हैव टू रीबिल्ड द इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश. वे फॉरवर्ड अगर हम देखें इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप क्या है, इंडिया ऑप्शंस, इंडिया के पास क्या ऑप्शन है, मेंटेन न्यूट्रलिटी व्हाइल प्रोटेक्टिंग हिस्टोरिकल टाई विद शेख हसीना, दैट इज इंडियाज ऑप्शन. कि we will not going to take a side whether we need to support Sheikh Hasina or oppose Sheikh Hasina, हम neutral रहेंगे, but definitely we need to protect the historical tie with Sheikh Hasina because we do not know कि in future Sheikh Hasina can be reinstated over there, Sheikh Hasina can become the prime minister again, कोई नहीं जानता है. ठीक है, अब पाकिस्तान देख लो, नवाज शरीफ को भगा दिया गया था, उसके बाद अभी उनके ब्रदर वही प्राइम मिनिस्टर वहां पे है. तो ऐसा भी पॉसिबल है कि शेख हसीना फिर से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हो सकती है. बिकॉज ऑफ दैट रीजन इज वी कैन नॉट ब्रेक द टाई ओके विद शेख हसीना. नाउ फोकस ऑन रिवाइविंग ट्रेड, कॉमर्स एंड कल्चरल एक्सचेंज. बांग्लादेश रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, अनइलेक्टेड, बिकॉज यूनुस गवर्नमेंट इज अनइलेक्टेड स्टिल. Unelected Yunus government must ensure fair trials and avoid political vendetta. Move behind Hasina focused rhetoric to strengthen bilateral relationship. ये हमको करना है. अगर की टेक अवे हम देखें तो रिवाइव बायलैटरल एंगेजमेंट बिकॉज वी हैव सीन वीजा सर्विस हैव बीन ओके स्टॉप्ड, दैट शुड बी रिज्यूम्ड. ट्रेड लिंक्स, कल्चरल प्रोग्राम दैट नीड टू बी स्टार्टेड. अवॉइड पॉलिटिकल पोलराइजेशन, दैट मींस फोकस ऑन मोर म्यूचुअल बेनिफिट्स rather than divisive narratives. India's historical stance, India's history of providing refuge, that is for example Dalai Lama. हम लोगों ने दलाई लामा को भी refuge received. China has done everything but still we have given the refuge to Dalai Lama. ये तो शेख हसीना और आप तो बांग्लादेश, तो आप तो कुछ भी नहीं हो ना. So that is the cases. Even in case of in context of China, we were not actually crumbled upon the against the pressure of for example China, and at that time we have provided the refuge to Dalai Lama. तो दैट डिमोन्स्ट्रेट इट्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टू रीजनल स्टेबिलिटी. तो जब दलाई लामा को हमने रिफ्यूज प्रोवाइड किया, जगह दिया, तो शेख हसीना को भी दे ही सकते हैं. बट यस, इंडिया एंड बांग्लादेश बोथ रिलेशन शुड बी रिस्टोर्ड and both should actually look behind the Sheikh Hasina and look for mutual relationship, look for trade, look for commerce, look for culture, look for more people to people tie. So this is for today's video. If you like okay the video, please hit the like button and share with your friends also. Thank you, all the best.